اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، ہاں جناب، آپ نے سلام کیا، سنے آپ نے سلام کیا، سن لیا، میں نے آپ کا سلام سن لیا، آپ نے سلام کیا، ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے سنے، آپ خود کو کہتے ہیں، میری بات سنیں، آپ خود کو مانتے ہیں صحیح العقیدہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو جب ظاہر کی بات ہے تمہارا عقیدہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے السلام قبل الکلام، اس کا کیا جواب دو گے میرے؟ اب سنو، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے ہمیں سلام کیا ہی کیوں؟ میری بات سنو، پہلا آپ میری بات پوری ہونا ہے، دوسری بات یہ سلام کرنا سنت، کس کو کس کو سنت ہے سلام کرنا؟ مسلمان کو سلام کرنا سنت۔ اچھا، تم ہمیں مسلمان سمجھ کے تم نے ہمیں مسلمان سمجھ کے سلام کرا ہے؟ ہر مسلمان کو سلام کرنا سنت، اور سلام کا جواب تم نے ہمیں سلام مسلمان سمجھ کے کرا ہے؟ اب تم آپ کو صحیح عقیدہ مانتے ہو نا؟ ارے تم ہمیں کیا مان کے سلام کر رہے ہو؟ میری بات سن، میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے جو ہمیں سلام کیا ہے وہ کیا سوچ کے کیا ہے، یہ بتا۔ تو میری بات سن، جس چیز کی طرف تو جا رہا ہے، یہ دو ابھی سے تو پہ آ گئے بھیا، تم یہ دو ابھی سے تو پہ آ گئے ایک ہی سوال میں۔ ارے نہیں، جس چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، ہاں، آپ اس چیز کی طرف ابھی نہ جائیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں کدھر بھی جاؤں نہ جاؤں، میں یہ پوچھ رہا ہوں تم نے ہمیں سلام کیا سوچ کے کرا، یہ بتائیں آپ۔ ارے بھائی ایسا کیسے چلے جاؤ گے یار تم؟ ارے تم نے ہمیں سلام کرا ہے اور تم کہہ رہے ہو سلام کرنا سنت ہے، تو تم اور مسلمان کو، تو تم نے ہمیں مسلمان سمجھ کے سلام کیا نا پھر؟ مسلمان، ارے نہیں بھائی، آپ نے سلام کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، تو بھائی تم نے سلام کیا سمجھ کے کیا ہمیں، یہ تو بتائیں بھائی۔ پہلے میری بات سن، یہ پھر آپ تو پہ آ گئے یار، آپ تو بہت بدتمیزی پہ آ جا رہے ہیں ایک ہی سوال میں۔ ارے میری سن، یہ پھر بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہا تھا یہ۔ ارے نہیں، بدتمیزی کی کیا بات ہے بھائی میرے دوست، ایک منٹ میرے بھائی، بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ سوال دو، پیار سے بات کرتے ہیں نا، کچھ سمجھ میں آئے تمہارے کچھ ہمارے۔ بدتمیزی میں نہیں کر رہا ہوں، بدتمیزی آپ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، آپ ہی ابھی تو تڑاک پہ آئے ہیں اور میں بدتمیزی کر رہا ہوں۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا یہ ہولڈ پہ کس نے رکھ دیا؟ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. یہ ہولڈ پہ کس نے رکھا ہے؟ بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو اچھا، اس نے ہولڈ پہ رکھا ہے۔ ابھی ہم یہ بھی تو دیکھ لیں گے، سلام کا جواب لینے کو کہہ رہا ہے، سلام کر کیوں رہا ہے؟ Please stay on the line. آپ جس ویکتی لانے سے دو، اس بات کو کر بھی لانے رہے دو۔ ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا 10,000 میں۔ بھائی ہولڈ پہ کیوں رکھ رہے ہو بھائی؟ ارے ہولڈ پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ ابھی تو خالی ایک ہی سوال پوچھا تھا بھائی۔ اچھا ایک سوال ہیلو، آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں پھر اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا۔ ارے بھائی بار بار ہولڈ پہ کیوں رکھے ہو؟ کسے لے رہے ہو کال پر؟ جس سے تم پہلے بات کر رہے تھے نا، میں تو تم ہی سے کر رہا ہوں۔ نہیں، جس سے آپ پہلے بات کر رہے تھے مجھ سے پہلے۔ کس سے کر رہا تھا بھائی؟ میں نے تو پہلی بار وہ بھی تم سے بات کری ہے۔ جہاں پہ مجھے تمہارا نمبر ملا ہے نا، یہ
अच्छा तो तुमने वहाँ से नंबर लिया है हमारा, तो अब तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? तुम तो उधर कॉल लगा रहे हो, उधर क्यों लगा रहे हो? सलाम तुमने करा है और वो जवाब उनसे दिलवाओगे। अच्छा नहीं, हाँ तो तुम, इसका मतलब ये है कि हमने सलाम कर लिया तो आप इसे साबित करना चाहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो? नहीं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने हमें क्या समझ के सलाम करा है वो पूछ रहा हूँ। हमने इसलिए सलाम किया, तुम कह रहे हो ना हम सही उल अकीदा हैं। तुम भी हमें सही उल अकीदा मानते हो क्योंकि तुम तो देवबंदी हो। तुम कह रहे हो ना, अरे सलाम तुमने करा है और तुम कह रहे हो मुसलमान को सलाम करा जाता है, तो यानी तुम हमें सही उल अकीदा मान रहे हो हमारे कहने से। हाँ तुम कह रहे, ठीक है मैं मान गया मेरे भाई, मैं मान गया। तुमने कहा सलाम करना मुसलमान को, तुमने हमें सलाम कर दिया मुसलमान समझ के। हाँ जी जी बताए बताए। सलाम किया आपको, ठीक है ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि तुम गलत अकीदा हो। अरे मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। अरे मेरी बात सुन, तूने ये कहा है कि तुम गलत अकीदा हो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा अभी। पहले कहा था ना, पहले भी नहीं कहा था। सलाम का जवाब नहीं देते। अच्छा पहले ये कहा था कि हम हाँ ठीक है, सलाम का जवाब नहीं, यही कहा था। हाँ जुल्फिकार भाई ने कहा था। ये किसी ने भी कहा हो, बहरहाल कहा है नहीं लफ्ज। हाँ बिल्कुल कहा है, मैं मानता हूँ सही कहा है। तो चलो तुम्हारे एतबार से हम गलत अकीदा वाले हैं, तुम्हारे एतबार से ठीक है, लेकिन तुम खुद को सही उल अकीदा साबित कर रहे हो ना। ठीक है अब मेरी बात सुनो, हमारे एतबार से तुम बद अकीदा, हमारे एतबार से नहीं हो, कुरान और हदीस के एतबार से बद अकीदा हो तुम। अब मुझे ये बताओ तुमने हमें सलाम क्या सोच के करा, ये बताओ। रुक जा, पहले मेरी बात तो पूरी होना, बात आगे जब बढ़ी हो भाई, ऐसे काम नहीं चलने का, बात आगे बढ़ रही है। भाई तुमने कहा कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमने सलाम क्यों किया है। अरे मेरी सुन ले पहले। अरे भाई यार आप बदतमीजी पे आ गए यार, मैं इतनी प्यार से बात कर रहा हूँ। अच्छा देवबंदियों में यही देवबंद में यही सिखाया जाता है। अच्छा सुनाओ सुनाओ। कह रहे हो, सुनाओ भैया सुनाओ। हम गलत पकड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अरे हमारे नहीं कुरान और हदीस से। कुरान हदीस में तो बाद में जाइए, उस पर भी देख लूंगा तुझे, पहले इसकी बात करो। ये यार आप फिर बदतमीजी करने लगे। नहीं यार भाई बदतमीजी मत करो, देखो बदतमीजी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करो, कितनी गलत बात है बदतमीजी करना। तो प्यार से मान लो मेरी बात। हाँ मनवाओ, क्या मानना है बताओ। मैं बात समझा रहा हूँ, मेरी बात समझो। समझाओ। देखो तुमने ये कहा है कि तुम गलत अकीदा वाले हो, ठीक। हाँ तो तुम गलत अकीदा हो कि हम तुम्हारा कहने के एतबार से, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम गलत अकीदा वाले हुए। हाँ कुरान और हदीस से, ठीक है, वो बाद में साबित करवाऊंगा तेरे को कुरान और हदीस से, पहले बात सुनिए। अरे भाई आप फिर बदतमीजी करने लगे, मतलब यही सिखाते हैं क्या देवबंद में। अरे पहले मेरी बात सुन ले, वो बाद में जाइए वहाँ। अच्छा देवबंदियों को यही सिखाया जाता है क्या देवबंद में। अरे वाह यार तू इतनी बड़ी बात मत कर, वहाँ पर बाद में जाइए, पहले तू इससे तो नहीं मतलब है, वहाँ बात में पहुँची हो। आप तरीके से बात करोगे, ये तू तड़ाक से मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तुम भी मत करो। मेरी बात सुन, अपने बाप के बाद में हाथ डालना, पहले उनके बेटों से निमट ले। ये देखो पहले भाई बेटों को यही नहीं मालूम है कि हम सलाम कर रहे हैं तो जिसे कर रहे हैं वो मुसलमान भी है कि नहीं है, यही नहीं मालूम है। वो जिसको सलाम कर रहे हैं कह रहे हैं सलाम मुसलमानों को करा जाता है, और खुद ही कह रहे हैं कि हमने तुम्हें सलाम करा, यानी मुसलमान भी समझते हैं हमें, और दूसरे बेटे कह रहे हैं कि नहीं हम मुशरिक हैं। क्या पिक्चर चल रही है। पहले मेरी बात पूरी होने दोगे क्या। तुमने जो हमें सलाम करा था वो क्या समझ के करा है ये बता दो। पहले मेरी बात पूरी होने दोगे क्या। हाँ बता, मतलब शॉर्ट में बताओ। शॉर्ट में ये है कि तुम्हारे एतबार से हम हैं गलत अकीदा वाले, कुरान हदीस से यार सही बताओ। ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तुम हो अच्छे अकीदा वाले तुम्हारे एतबार से।
قرآن و حدیث سے، ہمارے نہیں ہے. ٹھیک. ہاں وہ بات میں ثابت کرنا مجھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو سلام کیا ہے نا جی دیکھو سلام کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. حدیث کے اندر آیا ہے السلام قبل الکلام. ٹھیک. اگر دیکھو مشاہدے میں یہی بات آتی ہے اگر کافر کا بھی فون آ جائے ہمیں معلوم نہیں نمبر سے ہمارے پاس میں کال آیا ہے اب ہمیں کیسے تعین ہوگی حالانکہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی کافر کا فون آ جائے ہمیں پتہ نہیں ہے نئے نمبر سے ہے تو دیکھو ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہوئے السلام قبل الکلام ہمارا فرض ہے کہ ہم کیا کریں سلام کریں. تو اس لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو کیا ہے سلام. اب بولیے آپ آگے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ہو گئی نا. اب میری بات سنو. تم سے میں نے پوچھا تھا کہ تم نے ہمیں کیا سمجھ کے سلام کیوں سلام کیا، تو تم نے کہا حدیث شریف میں ہے کہ جب ملو تو سلام کرو، سنت ہے اور مسلمان کو سلام کیا جاتا ہے. تو میں نے تم سے کہا کیا تم نے ہمیں مسلمان سمجھ کے سلام کرا، تو تم اس کا جواب نہیں دے رہے. اور تم سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں سلام کیوں کیا، تو تم اب ہمیں مثال دے رہے ہو کہ جب فون آ جائے تو کافر کو بھی دھوکے سے سلام کر دیں تو کوئی دقت نہیں، جان پوچھ کے نہیں کر سکتے. لیکن تمہیں تو معلوم تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی بھی ہیں. تم نے فون کرا تھا ہمارے پاس کئی بار، اس کے بعد جب تمہارے پاس فون لگایا تم جان پوچھ کے ہمیں فون سلام کر رہے ہو، تم دھوکے سے نہیں کر رہے ہو کیونکہ ہم تو بریلوی ہیں سنی حنفی بریلوی. تم ہمیں جان پوچھ کے سلام کر رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو ہمارا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو. یعنی کہ تم پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سلام ہم سلام مسلمانوں کو کرتے ہیں اور تم نے ہمیں سلام کرا، اس کا مطلب تم ہمیں مسلمان سمجھتے ہو، اور جو دوسرے تمہارے دیوبندی ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں مشرک. اس کا مطلب تمہارے حساب سے وہ دیوبندی غلط ہوئے، اور اگر تم صحیح ہو تو ان کے حساب سے تمہارے حساب سے وہ دیوبندی غلط ہوئے اور ان کے حساب سے تم غلط ہوئے. تم دونوں دیوبندی ایک دوسرے کے حساب سے غلط ہوئے. اب یہ بتاؤ جو تم نے ہمیں سلام کیا تھا وہ مسلمان ہی سمجھ کے کیا تھا کہ کچھ اور سمجھ کے کر رہے ہو، یہ بتا دو خالی. من وجہن مسلمان، من وجہن غلط عقیدہ اور مشرکین والا عقیدہ ہے آپ کا. پھر تم نے سلام کیوں کرا؟ سلام کیوں کرا پھر تم نے؟ جو یہ من وجہن ہے ایک حساب سے تو کس حساب سے؟ پڑھ رہے ہو بھائی جو مشرک کافر ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو کافر کو سلام نہیں کر سکتے، تم نے کیوں کرا پھر؟ میری بات تو سن لے پہلے. یعنی تم نے جان پوچھ کے سلام کرا؟ میری بات سن لے پہلے. اللہ اکبر. یعنی تم نے اپنے ہی حساب سے غلط کام کر ڈالا. جی ذوالفقار بھائی. اب یہ دیکھو یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف مسلمان کو سلام کر سکتے ہیں کافر کو نہیں، اور دوسری طرف یہ ہمیں مشرک بھی سمجھ رہے ہیں اور ہمیں سلام کر رہے ہیں. ایک کام کرو، کہاں پڑھے ہو تم، کہاں پڑھائی کریے؟ میں نے جو سلام کیا ہے نا تم ہاں تو وہ میں نے کیا ہے تمہارے عقیدے کے حساب سے، کیونکہ تم اپنا عقیدے کے حساب سے اپنے آپ کو خالص کیا مانتے ہو. اچھا مطلب ہم اپنے عقیدے کے حساب سے مشرک نہیں ہیں. تم اپنے عقیدے کے اعتبار سے خود کو کیا مانتے ہو؟ ہم تو الحمدللہ صحیح مانتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق. بالکل قرآن و حدیث کے مطابق بالکل. ہاں اپنے تمہارا عقیدہ یہی ہے نا. اب تم کیا مانتے ہو؟ تم نے کہا ہم مشرک ہیں تو تم نے سلام کیوں کرا؟ میری بات سن لے. اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہو نا. ارے ہماری چھوڑو، تم نے ہمیں مشرک مانا تو سلام کیوں کرا یہ بتاؤ. کہاں پڑھے ہو تم؟ میں نے جو سلام کیا ہے نا تو تمہارے عقیدے کے حساب سے کیا، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اس لیے. ابھی یار کہاں پڑھتے ہو تم لوگ؟ ابھی مشرک کہہ رہے تھے اور اب کہہ رہے ہو عقیدے کے حساب سے کیا، عقیدہ صحیح ہے. ارے جب عقیدہ صحیح ہو گیا تو مشرک کہاں سے ہو گیا میں؟ تمہارا جو عقیدہ ہے
हाँ हाँ बताओ। अच्छा बताओ। तुम्हें अपने अकीदे के हिसाब से सलाम नहीं किया। हमारे यहाँ तो तुम मुशरिक को शिरक करते हो, तो वो साबित करूंगा। अभी कह रहे थे अकीदे के मुताबिक किया, अब कह रहे हो कि अकीदे के मुताबिक नहीं किया। अल्लाह अकबर, मतलब कहाँ से आए हो तुम यार? मैंने उलमाए देवबंद के अकीदे के मुताबिक सलाम नहीं किया, उलमाए बरेलवी के अकीदे के मुताबिक सलाम किया। अच्छा, यानी कि तुम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं करोगे। अच्छा, तुम लोगों को उनके हिसाब से सलाम करते फिरते हो और काफिरों के मुताबिक सलाम करोगे। मतलब ये सब तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ये बता दो। ये सब पढ़ाता कौन है तुम्हें? क्यों किया तुमने? हमें पढ़ाना है तुम्हारा अब्बू। ये देखो अमान भाई। हाँ जुल्फिकार भाई, इसने इकराम देवबंदी की पैरवी में फोन करा है मेरे पास को, और इकराम भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुनो इकराम भाई, मैंने इकराम देवबंदी से भी यही बात बार बार पूछी थी, तूने मुझे सलाम करा, वो क्यों करा? लेकिन वो आलिम बताइए, आलिम कर जाए वो, लेकिन वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाया मुझे। कोई नहीं दे सकता। अब देखो जुल्फिकार भाई, एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने तुम मुशरिक हो, तो मैं इनसे पूछा सलाम क्यों कर रहे हो? बोले अकीदे के मुताबिक। तो अरे जनाब, तो अकीदे ही से तो मुशरिक हुए हैं तुम्हारे मुताबिक। इंसान अकीदे से ही काफिर और मुशरिक होता है, तो अकीदे के मुताबिक यानी मुशरिक जान के सलाम कर रहे हो। तो तुमने खुद कुरान और हदीस का उसूल तोड़ दिया एक अपने हिसाब से मुशरिक को सलाम करके। अच्छा, अब ये बताओ, अब सही से बताओ, तुमने सलाम क्यों करा? फिर से बताओ सोच के, अब की से बताओ, क्यों करा? सलाम जो मैंने किया है ना, हाँ फिर से। उसमें मिन वजहीन क्या है? तुम्हारे अकीदे के एतबार से तुम क्या हो? मुसलमान। हमारे अकीदे के हिसाब से तुम क्या नहीं हो? सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो। अच्छा, तो फिर सलाम क्यों करा तुमने? नाम क्या है तुम्हारा? कैसा हलवा पूरी आ गई क्या? ज्यादा हंसियारी। अरे भैया, फोन काट के चले जाओ यार। हलवा पूरी आ गई क्या? बेइज्जती करा रहे हो। देवबंदियों ने क्या सिखाया तुम्हें? कैसा हलवा? अच्छा सुनो, अच्छा अबकी से बताओ, क्यों सलाम करा तुमने? हलवा पूरी आ गई क्या तुम्हें? इसलिए हंसी आ रही है। अरे हलवा खाना सुन्नत है, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ। अब ये बताओ कि तुमने सलाम क्यों करा हमें? तेरा बाप ने लिखी बुखारी में हलवा खाना सुन्नत है, कौन सी हदीस है बताइए मुझे। ये देखो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुझे हदीस दो, मुझे हदीस भेजो। तो कहाँ है हदीस? को भेजो। हलवा खाना सुन्नत। एक मिनट, नहीं मैं इनको दलील तो दे दूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ इन्हें सलाम क्यों करा? फिर से बताओ, सलाम क्यों करा? सुन ले मेरी, तूने कहा ना हलवा खाना सुन्नत है, तो मुझे दिखा सुन्नत दिखा। हलवा खाना कहाँ लिखा सुन्नत? ला। अरे वो मैं दिखा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमने हमें सलाम क्यों करा, ये तो बताओ। पहले मेरी बात का जवाब दो। सुन्नत की तारीफ करके आया, सुन्नत कहते हैं बहुत बड़ा आया तो सुन्नत को मानने वाला। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी कर दूंगा। हलवा खाना सुन्नत है वो बता दूंगा। पहले ये तो बताओ कि तुमने मुझे सलाम क्यों करा? पहले वो साबित कर। हाँ चलो, बाद में हम वही साबित करेंगे, जिस पर तुम बात करोगे उस पर ही बात करेंगे। लेकिन तुमने मुझे सलाम क्यों करा वो तो बताओ पहले। हेलो देवबंदी भाई, हेलो। हाँ, जैसे तुमने सबसे शुरू में मुझे सलाम करा है, तो मुझे ये तो बता दो तुमने मुझे सलाम क्यों करा। तो उसके बाद हम बात करेंगे हलवे पे और उस पे, सुन्नत पे, सब पे बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले बताओ तुमने सलाम क्यों करा मुझे? तुम मुझे हलवे की सुन्नत होने के दलाइल जो दे रहा है, तो हलवा खाना सुन्नत है भेज, और सुन्नत की तारीफ बिल्कुल भेजूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन तुमने मुझे सलाम क्यों करा यार? मेरी यही समझ में नहीं आ रही अभी तक। मुशरिक भी कह रहे हो, काफिर भी कह रहे हो, सलाम भी कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो काफिरों को सलाम नहीं कर सकते। कहाँ से आए हो? अच्छा कहाँ से आए हो? मैं ये कह रहा हूँ, खाना आ गया क्या?
नहीं नहीं, जैसे वो अशरफ अली थानवी के जो मामू साहब थे, वो जो मीठा लेके आते थे कबर में से, वैसे नहीं आया हमारे पास, टेंशन मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने हमें सलाम क्यों करा? है ना, वो कबर पुजारी नहीं है, कबर पुजारी वो अहमद रजा। ये देखो यार, अगर इसी हिसाब से मैं तुम्हारे अशरफ अली थानवी जो है उनको गाली बकूं, तुम्हें अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना, तो तुम क्यों गाली बक रहे हो? कितनी गलत बात है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को तुम गाली बक रहे हो। अगर मैं तुम्हारे अशरफ अली थानवी जो है उनको गाली बकूं, तुम्हें बुरा लगेगा ना? इसलिए तुम ऐसी बात ना बोलो कि मैं तुम्हारे अकाबिर को गाली बक, समझ रहे हो? तो कितनी गलत बात है कि तुम अपने अकाबिरों को गाली बकवाओ। इसलिए हम प्यार से बात कर रहे हैं ना, तुम हमारे अकाबिर जो है उनको गाली दो ना, मैं तुम्हारे अकाबिर को गाली दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम देवबंदी हमें मुशरिक कहते हैं। जो आदमी मुजीब बिदात है, जो आदमी जिद्दत को ईजाद करने वाला है, क्या उस आदमी को अच्छा समझा जाएगा? चलो ठीक है, उस पर बात करेंगे। अहमद रजा ने तो ये अहमद रजा ने तो तुम्हें कब्रों का पुजारी बनाया है, ये मज़ार बनाया। देखो ये सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ ये नशरुत्तीस है अशरफ अली थानवी जो है तुम्हारे, उनकी वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, रसूल किबरिया मेरी मदद फरमाइए। वो खुद मांग रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इनकी इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी की तुम्हारी किताब है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि एक मुरीद हमारा पीर के जो है कब्र पे गया, वहां पर जाकर उनने खाना मांगा तो पीर साहब उनके तकिए के नीचे 2-2 रुपए रख के जाते थे। तो ये तो तुम्हारे घर में सब चल रहा है, और भी दलीलें हैं। वो नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तुमने, क्योंकि देवबंदी हमें मुशरिक कहते हैं और तुम कह रहे हो हमें तुम कर रहे हो हमें सलाम, तो तुम देवबंदियों के मुताबिक गलत हुए। जब मुशरिक को तो सलाम कैसे किया जाएगा? हाँ तो तुमने क्यों किया? दिल निकाल भाई यार। आप कह रहे हैं मुशरिकों को सलाम, आप कह रहे हैं, सुनो तो, आप कह रहे हैं कि मुशरिकों को सलाम कैसे किया जाएगा, और मुशरिक भी मान रहे हैं, सलाम भी कर रहे हैं। अल्लाह मेरे भाई। अच्छा कब देवबंदी बने तुम, कब बने? नाबालिग हो क्या? एक मिनट, नाबालिग तो नहीं हो? कहीं देवबंदी बन गए हो कम इल्मी में? हेलो। अच्छा उम्र कितनी है तुम्हारी? नाम क्या है? नाम और उम्र बताओ अपनी। नाम तो मेरा वो है अहमद रजा। अहमद रजा। और उम्र कितनी है? उम्र है तकरीबन 19-20 साल। हाँ तो मतलब अशरफ अली थानवी से 2 साल बड़े हो तुम। मैं ये कह रहा था कि सुने देवबंदी साहब, सुने मैं ये कह रहा था कि तुमने सलाम क्यों करा? अच्छा। अरे मैंने तो अपने हदीस पर किया था, अमल हो गया, छुट्टी हुई। अच्छा अभी तो तुम कह रहे थे कि काफिर को सलाम नहीं किया जाएगा, अब कह रहे हो कि मैंने हदीस पे अमल किया, यानी हदीस में मुशरिक को सलाम करने को लिखा हुआ है। एक काम करो, देवबंदियत जो है ये देवबंदियत एक फितना है, इसको छोड़ के और जरा तहकीक करो अपनी, फिर से सही से तहकीक करो शुरू से, कौन सही है कौन गलत है, फिर उसके बाद फैसला करो, ठीक है? अभी सही से तहकीक करो, अभी तुम्हारी तहकीक मुकम्मल नहीं हुई है, तुम खाली फोन उठा के लोगों को परेशान करते हो, पहले तहकीक करो सही से। अच्छा तो तुम अमान भाई तुम्हारी तरह अगर पुजारी बन जाए अमान भाई, हाँ यही चाहते हो?
ये इकराम अच्छा एक जुल्फिकार भाई ये कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारी तरह क्या कब्र पुजारी बन जाएं। देखो अशरफ अली थानवी ने अपनी नशर तीस में लिखा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं, क्या वो कब्र पुजारी है? और फिर अपनी इमदादुल मुश्ताक के अंदर उन्होंने लिखा है कि वो पीर साहब की कब्र पे आके खाना मांग रहे थे और पीर साहब ने भी मदद करी, तो क्या वो अशरफ अली थानवी सर जो देवबंदी इन किताबों को पढ़ते सब कब्र पुजारी है? और अशरफ अली थानवी के जो मामू थे वो मिठाई लेके आते थे मरने के बाद कब्र में से निकल के, तो क्या वो मिठाई खा के सारे देवबंदी और इस वाक़ये को लेके कब्र पुजारी हो गए? और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो जिनको तुम लोग भी अपना पीर मानते हो वो भी इस कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज है, वो भी इसके कायल है, तो क्या तुम्हारे नजदीक वो भी कब्र पुजारी है? और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो हैं वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं, वो भी अशरफ अली थानवी के पीर हैं, तो क्या वो भी कब्र पुजारी हैं? मैं फिर ये क्या कहूंगा कि अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सब मानते हैं उन्हें, कई सौ साल पुराने हैं, वो लिखते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचो मजार शरीफ पर तो गिड़गड़ा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करो, तो क्या वो भी कब्र पुजारी हो गए? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इल्मे हदीस जो यहाँ पर हिंदुस्तान में लेकर के आए उन्होंने भी लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज है, तो क्या वो भी माज़अल्लाह कब्र पुजारी हो गए कई सौ साल पुराने? और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि अल्लाह वालों से मदद इस तरीके से मांगो ये अकीदा रख के कि अल्लाह की अता से करते हैं, तो क्या वो कब्र पुजारी हो गए? और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी पुकारा है, तो क्या वो भी कब्र पुजारी हो गए? जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह की है फतहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी जिनकी सब पढ़ते हैं देवबंदी वहाबी सब, वो अपनी तरगीब व तरहीब में लिखते हैं कि मजार शरीफ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आगे जाने का हुक्म दिया, तो क्या माज़अल्लाह क्या वो भी कब्र पुजारी हो गए जनाब? और अल्लामा शमहुद्दीन नूरुद्दीन शमहुदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वफाउल वफा में लिखते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर गया, मेरी चाबी गुम गई, मैंने अर्ज किया तो मुझे मेरी चाबी मिल गई, तो क्या वो भी कब्र पुजारी हो गए? इतने बड़े मुहद्दिस सारे लोग मानते हैं उन्हें। उसके बाद अल्लामा रमली रहमतुल्लाह अलैह जो शाफई भी हैं अपनी फतावा रमली में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और औलिया इकराम की मजार मुबारक पे जाके मदद मांगना बिल्कुल जायज है। क्या वो ये सारे मुहद्दिस जो 1400 साल से चले आ रहे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद जो थे वो गए, वो भी कब्र पुजारी है सब। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने इन्होंने होल्ड पे रख दिया रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति कुछ नहीं होता, कुछ मतलब देवबंदी और वहाबियों ने इन लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखा दी हैं और ये गुमराह हो गए हैं, भागे हुए हैं, समझ जाएंगे इंशाल्लाह तो वापस आ जाएंगे। अब क्या ये अहले सुन्नत वल जमात के सारे मुहद्दिसीन को कब्र पुजारी बोलेंगे?